maybe you can share a few of your impressions when you came there, and also where you see potential for us, the Netherlands, India, the Netherlands and Maharashtra, if we work together, this very strategic topic. Thank you very much. Solid waste management, and I think Netherlands is leading in all this. And I'm closely working with Netherlands for the last 2-3 years. One of the projects I'm implementing in my constituency also solid waste management. We are doing working on water management also. I think Netherlands has an experience in everything. Say it water, say it solid, sorry, liquid, STP, ETPs. Only thing is with the government, how the government is working. And I think we have already done it in Amarnath. Like one project is going on. I think that can be a benchmark for other digital corporations. So I wish you all the best. Don't be take from today's exhibition. Thank you very much. To bring something, whether it's knowledge, whether it's our expertise or our network, and we can also learn a lot from the Indian experience. So, one big applause for our dear colleague, Mr. Shinde, and thank you so much for making your precious time available. Thank you so much. So, I want to hear from you as well. How is it to be ambassador? Well, my role is very different from yours. You're an advocate for your country and an advocate for the earth. Such important opportunities of collaboration and partnership. And I feel the most critical thing that one has learned over time is that the really big problems of our times can generally be solved with collaboration. And these are the kinds of collaboration that we hear about. And there are more and more examples of such collaborations that are emerging. I'm very, very grateful for this trade fair, for creating the platform for people all over the world driving solutions to engage with the local solution makers and of course with partnerships with government and civic bodies and industry across all sectors. So, thank you. प्रोत्साहन मिलती है जब मैं ऐसे ट्रेड एक्सपर्ट्स पे आती हूँ, क्योंकि इफैक्ट जो कर रहा है वो हम सब तक सॉल्यूशंस लेकर आ रहा है। हम सब जानते हैं कि वेस्ट और पानी को लेकर बहुत क्राइसिस है और जितने भी सॉल्यूशंस और इनोवेशंस हम तक पहुंचेंगी उतना ही अच्छा होगा। सबसे खास बात इस फेयर की ये है कि यहाँ पे बहुत सारे नेशन से अलग अलग दुनिया के कोनों से डेलीगेशंस आए हैं जिन्होंने वेस्ट और वाटर ट्रीटमेंट के जो एग्जांपल्स हैं और जो उनके सक्सेस है वो हमको प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। तो उससे क्या होता है, पार्टनरशिप्स बनती है, कोलैबोरेशन। और मेरी उम्मीद यही है कि सिविक बॉडीज, गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस,
इंडस्ट्रीज सब इन सॉल्यूशंस को अपनाएं और उनको इम्प्लीमेंट करें, ताकि आप और मैं और हमारे बच्चे स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा और स्वच्छ और स्वस्थ एनवायरनमेंट में जी सके। राष्ट्रीय दिवाली है, क्या कुछ करना चाहेंगे? हम सब जानते हैं कि दिवाली रोशनी लेकर आता है अंधेरे से, राइट? और ये भी जानते हैं कि नॉलेज इज लाइट, और तो उम्मीद हमेशा यही रहती है कि हम सब हमारा नॉलेज बढ़े, हम वही काम करें जो दुनिया में रोशनी है। और जो वाटर ट्रीटमेंट हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, अलग अलग जो सिटी को जरूरत है, जो अर्बन एरियाज को जरूरत है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए देश विदेश से यहाँ पर अलग अलग ऐसा है कि इसका उपयोग हमारे शहरों को जरूरी है, और एक कोलैबोरेशन होना बहुत जरूरी है इन कंपनीज के बीच में और हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और सरकार के बीच में। देखिए, आईफाड एक ऐसी एग्जीबिशन है जो इंडिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन है वाटर, वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। इस साल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट के ऊपर भी हमने काफ़ी नई अनाउंसमेंट्स किए हैं यहाँ पे। द ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाज हियर, मिस्टर शिंदे, जो इस सेक्टर को लेकर के बहुत पैशनेट हैं। यूएन एम्बेसडर डिया मिर्जा वाज आल्सो हियर, शी इज स्टिल हियर इनसाइड। तो इस एग्जीबिशन का एक ही पर्पस है, ये एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वो है सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, कि जितनी हमारी पानी से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड, सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे जो गार्बेज कलेक्शन है उसमें से वेट गार्बेज और सॉलिड गार्बेज को अलग करना, उसका अलग डिस्पोजल करना, ये बड़ी फंडामेंटल सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें फिक्स करना है। और आई थिंक अभी पिछले कई सालों से ईफाट हो रहा है यहाँ पे, और हर एक एडिशन में हम इस अवेयरनेस को बढ़ाते हैं कि ये जो टॉपिक है, चाहे एग्जीबिशन बेशक से बॉम्बे में हो रही है, लेकिन यहाँ पे 30 से ज़्यादा कंट्री से लोग आए हैं। हर एक टेक्नोलॉजी जिससे इंडिया की एनवायरमेंटल इश्यूज को हम सॉल्व कर सकते हैं, वो सब डिस्प्ले पे हैं। तो वी इनवाइट द एंटायर इकोसिस्टम, जितने भी लोग इस इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं उनको हम बुला के बोलते हैं कि देखिए आइए, जो सोल्यूशंस आपको चाहिए वो सब डिस्प्ले पे हैं, आके इस चेंज का हिस्सा बनिए। यही ईफाट का मेन मोटो है। ऐसे एग्जीबिशन से मेकिंग इंडिया को कितना सपोर्ट होता है? लेकिन आप देखिए यहाँ पे डिस्प्ले पे आधे से ज़्यादा कंपनीज इंडियन है, तो मेक इन इंडिया हैज़ अ बिग रोल टू प्ले। इसमें से कई ऐसी फॉरेन कंपनीज हैं जिनको इंडियन पार्टनर्स चाहिए होते हैं, तो टेक्नोलॉजी नो हाउ ट्रांसफ़र करती हैं और लोकली इंडिया में बनाती हैं। सो ये सब चीज़ें मेक इन इंडिया को फ्यूल करती हैं। सूनर और लेटर ज़्यादातर ये इंटरनेशनल कंपनीज इंडियन कंपनीज में टर्न हो जाएंगी। ये हमने सारे सेक्टर्स में देखा है, यहाँ पे भी ऐसा ही हो। थैंक यू। थैंक यू।